Okay, so this is our final table. Basically, let's keep a generic name, society account. So see, okay, in society account we will keep all these things. Oh, screen तो shared है यार, right? Uh, okay, अनशेयर करके फिर से शेयर करता हूँ. ओके, maybe your net is slow. Anyway, so this is how what we are going to do is we will create one more table which is society account table. In society account, what we are going to have, these columns. Okay, that this user has given some amount, that is credit amount, right? Debit amount means like that, okay, if there is some expense in that society, right? And current balance, whatever it is, transaction date, and the purpose, right? Or you can add remark. As a, okay, transaction mode, yes, very good point. Like it is uh, acha. So now let's say we have this one, transaction mode. In transaction mode we can have where char 10, let's say. Perfect, right? Okay, so one user can, and the date. Okay, let's keep one more, run id. Okay, run id is, let's say, numeric. So this is society account. Now let's say if you are raising a request, if you are raising a request, right? If you are raising a request, then uh, let's say payment payment request, right? A user, let's keep all the columns same. Okay, so because it's a user request, so we are just going to delete this column, and let's remove this also. Transaction date, transmode, remark, sock id, user id, run id, right? So once this user creates a request, and this request status, sorry, request approved or rejected. Okay, perfect. You can say request id. Very good. Okay,
So now let us create, so these tables are created and data is also moving to these tables, right? And now uh, see, right now there is a problem in approval request. What is that problem? The problem is like, even, I mean, we are displaying all the records, right, for everyone. I mean, everybody whosoever has login can approve that request, right? But what should be? Only the admin of that particular. So if you have logged in, right, and if you are an admin, right, then only you should be able, if you are admin in that society, that then only you should be able to approve a request, then only you should be able to approve a request, isn't it? See, otherwise what will happen in your society, right? Like everybody can log in and he can approve his. Uh-huh. Yes. So let's say if you are if you are not an, let's say, we both are in a society, right? But you are admin, right? And I am like, new to that society. So I created a request to join your society, right? Then you, I mean, that request should be displayed in your society only, right? I mean, that request should be displayed to you only, not everyone, right? So that's how, it should work. Or even like, if you are not an admin, right, then if you are opening that window, if you are opening that window, it should say that, hey, you cannot see this screen because you are not an admin, right? But what we can do is, as we discussed, like, that in our society, one user can be member of more than one society. How? Let's say you have purchased, two flats in two societies, right? Like one flat in one society and second flat in other society, right? And you are not staying there. So in that way, or you, in one society you are staying and one in other society you have given on rent, right? In that, what should happen? And you are admin of your, in the society in which you are staying there, right? So that is why, like, the let us display that menu, right, of approval screen, but the request which we are displaying over there should be filtered based on the society to which you are associated and you are admin in that. Is that clear to everybody? सब लोगों को ये बात क्लियर है? सी, एक्चुअली देखो, इस प्रोजेक्ट में थोड़ी थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, राइट? और वो कॉम्प्लिकेशंस में क्यों बता रहा हूं कि आपको उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं, रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, राइट? एनीवे, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, देखो, फिर से सुनो, हमारी सोसाइटी का क्या फंडा है, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर का क्या फंडा है, राइट? कि सबसे पहले तो, चाहे किसी की सोसाइटी, चाहे कोई सोसाइटी में रह रहा है या नहीं रह रहा है, हर किसी को एक लॉगिन क्रिएट करना है। लॉगिन कैसे कर, या तो उसको साइन अप करना है, और अगर साइन अप पहले कर चुका है तो वो साइन इन कर जाएगा, करेक्ट? किसी भी सॉफ्टवेयर की ये वो होता है। अब नाउ मैं आ तो गया, अब मुझे किस घर में जाना है बेसिकली, यानी कि किस सोसाइटी में जाना है, राइट? हो सकता है मेरी सोसाइटी पहले से क्रिएटेड हो, या हो सकता है मेरी सोसाइटी ना हो, राइट? तो अगर जो पहले से क्रिएटेड है तो आप क्या करोगे? यू विल रेज ए रिक्वेस्ट टू ज्वाइन दैट सोसाइटी, राइट? और अगर नहीं है तो आप क्या करोगे?
you will create that society. Now, because you are going to create that society, so you will be admin of that society, right? By default, you will be an admin of that society, right? Right? Or let's say, बोलो बोलो, पूछो, जो भी डाउट है वो सब पूछो. यस, तो वही हम करने वाले हैं. सी, जो तुम कह रहे हो, राइट, उसमें क्या है कि लाइक भाई अभी क्या है कि हमारे पास दो ही रोल हैं, ठीक है? या तो एडमिन और या फिर नॉट एडमिन, ठीक है? और जब मैं अपना आईडी खुद से क्रिएट कर रहा हूं शुरू में जा करके, राइट, तो मुझे नहीं पता आपकी मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से कैसे कैसे रोल होते हैं. व्हाट आई वांट टू डू इज, माय अल्टीमेट एम इज, hey, I got to know that this software is good to manage this society. Let me see if in in the society in which I am going to stay, or I am already staying, does anybody has any I mean registered our society in this particular software, राइट? तो मैं क्या करूंगा, सर्च, सबसे पहले तो लॉगिन करूंगा, और लॉगिन नहीं है तो लॉगिन बनाऊंगा, बन गया, रेडी हो गया. अब मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट रेज करूंगा कि हे गाइस, लाइक योर सोसाइटी, आवर सोसाइटी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज मेक मी एन मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, राइट? सो मैं एक रिक्वेस्ट रेज करूंगा, वो रिक्वेस्ट मेरी एडमिन के पास जाएगी. मान लो कि सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो फिर क्या होगा, तो मैं एक सोसाइटी क्रिएट करूंगा, राइट? और जब मैं एक सोसाइटी क्रिएट करूंगा तो उसका बाय डिफॉल्ट में एडमिन बन जाऊंगा, राइट? मतलब क्यों? क्योंकि हर सोसाइटी का एक एडमिन होना जरूरी है, सो दैट ही कैन अप्रूव अदर्स रिक्वेस्ट, राइट? ही कैन अप्रूव अदर्स रिक्वेस्ट, अदरवाइज, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट उसको एडमिन बना रहे हैं. लेकिन बाद में क्या प्रोविजन होना चाहिए, दैट लेट्स से, भाई मेरे को नहीं पता था सॉफ्टवेयर के बारे में, मेरे से पहले देवेंद्र रह रहे थे सोसाइटी में, राइट? मैं भी उनकी सोसाइटी में रहने चला गया, रिक्वेस्ट रेज की, हो गया एक रिक्वेस्ट. अब देवेंद्र क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे, राइट? बट सपोज अगर मैंने खुद से क्रिएट, अब देवेंद्र, अब लेट से मैंने कोई सोसाइटी क्रिएट कर डाली, बट आई वाज नॉट एडमिन, मेरी सोसाइटी नहीं थी वहां पे. तो उसके बाद जब कोई, मैं क्या कहूंगा, प्रेसिडेंट को बोलूंगा जा करके कि सर ये सोसाइटी मैंने बना दी है, अब आपको सिर्फ मैनेज करना है, राइट? अब आपको सिर्फ मैनेज करना है, आप आइए और मैनेज कीजिए. तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको एडमिन बना दूंगा और खुद हट जाऊंगा. क्यों? क्योंकि भाई दैट इज नॉट माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? माय, आई क्रिएटेड जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, एंड नाउ आई एम मेकिंग हिम एडमिन, दैट्स ऑल, राइट? सो ये सारी, ये करूंगा और वहां से हट जाऊंगा, और फिर वो ऐसा करके वो मैनेज करे. तो एक तो ये तरीका है. दूसरा ये तरीका होता है कि भाई अगर मैं एडमिन बन, मैं सोसाइटी केवल एडमिन ही क्रिएट कर सकता है, राइट? एडमिन ने सोसाइटी क्रिएट की और उसके अंदर जितने भी आईडी वाईडी थी अपनी तरफ से डाल दिए, राइट? बट उससे क्या होगा कि उसके पास काम बढ़ जाएगा, राइट? मान लो कि सोसाइटी के अंदर 1000 फ्लैट्स हैं, तो वो 1000 एंट्री करेगा वहां बैठ करके. तो व्हाट वी आर अलाउइंग टू द पीपल इज, hey, go and create your account and raise a request. I will just check your details and approve your request. That's all I will do. Correct? तो अभी हम, सी, हमारा पर्पज सिर्फ सोसाइटी को बनाना ही नहीं है, इस सॉफ्टवेयर का के कॉम्प्लेक्सिटी भी सीखनी है कि कैसे कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, राइट? ओके, परफेक्ट. अभी तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, आप, भाई आप साइन अप अगर कर रहे हैं, राइट, तो आप मान लो आपने आपको एडमिन बना दिए, है ना?
और वो अप्रूव होकर के चला गया, तो आपने तो सारा अकाउंट देख लिया वहां पे। कुछ ऐसे भी एक्सेस हैं हमारे जो केवल एडमिन को रह सकते हैं, राइट। तो इसलिए उस टाइम पे आप एडमिन नहीं हो, सब साइन अप के टाइम पे सब लोग जनरल यू नो पीपल हैं, राइट। क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं है ना कि आप कौन सी अकाउंट कितनी सोसाइटी के पार्ट हो सकते हो, या आप। तो हमने क्या किया, सिर्फ आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जब आप सोसाइटी क्रिएट करोगे, लेट्स से अगर आप क्रिएट करनी पड़ रही है, देन यू आर बाय डिफॉल्ट एडमिन। बिकॉज अभी तो क्रिएट हो रही है, उसके अंदर कुछ होगा भी नहीं, राइट। देख के भी क्या करोगे, तुम्हारा अकेले का अकाउंट पड़ा होगा उसमें, राइट। एंड इफ यू आर नॉट एडमिन, यू आर क्रिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन, you will just add into that society, and after that you can just hand over it to someone else and you can get out from there, right. That okay, you can be just a resident, right. So what we are doing here is, hey, login information. हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो हर कोई, वो धीरे धीरे आएगा भाई। ऐसे मतलब लाइक अब मैंने तो 50 सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं लाइफ में, राइट। तो वो इसलिए मैं इन चीजों को सोच पा रहा हूँ, या वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ सोसाइटी का जो वेबसाइट वाला है, राइट। तो मेरे माइंड में मेरा एक्चुअली ऑलरेडी माइंड सेट है। बट आपको, नहीं नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं नहीं नहीं, आपको देखो उसमें आपको कुछ रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट दैट बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न टेक्निकल पार्ट मोर रादर देन। और जब जो मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट सीखने की जरूरत है कि अच्छा यार, ऐसे भी करते हैं हम लोग, क्यों रख रहे हैं हम एडमिन का और चीजों का अलग अलग। ये आपको सोचने की जरूरत है कि भाई लाइक, भाई सारी चीजें सबको नहीं दिखाई जाती हैं, राइट। सिक्योरिटी पर्पस रख रहे हैं हम, राइट। आपको सिर्फ आपका वाला चीजें दिखाई दें। एडमिन क्या, भाई एडमिन को तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी, तो उसके हाथ में सब कुछ देने देना पड़ेगा। तो फॉर सिक्योरिटी रीजन वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूजर, वन इज एडमिन एंड सेकंड वन इज रेजिडेंट। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। गुड गुड क्वेश्चन आपने पूछा। देखो जो भी आपके माइंड में डाउट आता है ना, उसको बाहर लाने का है, अदरवाइज वो डाउट वहीं का वहीं रह जाएगा। तो यस, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू थिंक लाइक दैट। तो डोंट वरी, वो हम सब लोग साथ मिल करके करेंगे। और जब आप दूसरी एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, एनीवे anyway, और यही डेटाबेस में भी जब आप जा करके लिखोगे ना, आई विल गिव यू माय सीवी टू यू गाइस, राइट, कि भाई कैसे करके हम डेटाबेस के बारे में लिखते हैं, कि मैंने टेबल लेवल पर डिजाइन किया है। यू विल टेल, हे आई नो डेटा मॉडल, यू आर ए डेटा मॉडलर टू। क्योंकि सी सीक्वल लिखना और ये सब ठीक है, बट डेटाबेस डिजाइन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। यू आर गोइंग टू बिकम अ टेक्नो फंक्शनल कैंडिडेट, यू नो, टेक्निकल एज वेल एज फंक्शनल। क्योंकि जब तक हम फंक्शनल नहीं समझेंगे तब तक हाउ वी कैन गिव द सॉल्यूशन, राइट। एनीवे, चलो लेट्स मूव। तो हमने क्या किया कि लॉगिन क्रिएट किया एंड देन एक सोसाइटी मास्टर की टेबल क्रिएट की, बिकॉज सोसाइटी इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी stored here. And then we raised a request, right? आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई, योर डेटा इज गोइंग इनटू दिस, राइट। अच्छा, एडमिन और रेजिडेंट, राइट। योर रोल इज एडमिन और RESIDEN, perfect. Now when I'm creating a request, sorry, society, one record should be created directly in this table. No approval required at that time when I'm creating a request. I'm creating a society, right? And that like role is default admin and all these things. Now transactions, that okay, where I'm going to store all my information, ये main table है हमारी, right? That okay, लोग पेमेंट करेंगे कि भैया मैंने 2,000 रुपए दिए, 1,500 रुपए दिए, ऐसा कुछ करके किया है। What will you do? You will keep this information, right? They will raise a request here. Those requests again can be approved by an admin, right, of that particular society. And once it is approved, it will become the part of
दिस, तो मेन अकाउंट है आपका, राइट। तो ये हमें करना है। हाँ, सी सपोज आपने क्या किया, सी दिस इज माय फुल एंड फाइनल अकाउंट टेबल। आई कैन नॉट, इसमें डेटा एक बार आ गया तो आई विल नॉट डिलीट इट, बिकॉज अदरवाइज मेरा वो चीजें हिल जाएंगी, करेक्ट। सो दिस इज माय अकाउंट टेबल। जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है, ऐसे ये हमारा सोसाइटी का अकाउंट रहेगा। इस सोसाइटी के अंदर किसने कब कितना अमाउंट दिया वो रहेगा। इस टेबल का पर्पस क्या है, लेट से आप इस सोसाइटी का पार्ट हो, आपने गलती से 10,000 रुपए डाल दिया, डाले तो हजार ही थे आपने और भर दिए 1,000 रुपए, क्योंकि हम यहाँ से पेमेंट का डायरेक्ट पेमेंट तो कर नहीं रहे, आप तो सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हो सोसाइटी को कि भैया मैंने 1,000 रुपए डाल दिए हैं, ठीक है। और मान लो आपने 10,000 रुपए डाल दिया और मैं इसी में सेव कराता रहता, तो फिर मैं यहीं पे गंध मच जाता बेसिकली। आई वॉन्ट टू कीप neat and clean transactions in this table, right? So what you are going to do is, you guys are going to create a request in this table, right? You guys are going to create a request in this table, right? And then someone means admin will approve that request, and that data will move to this table, okay. Or what we can do is, we can keep वन मोर कॉलम अप्रूवल, इसको पूरा हटा सकते हैं हम लोग, राइट। और जिसका स्टेटस अप्रूव्ड हो जाएगा केवल वो ही दिखाएंगे, बाकी कुछ नहीं दिखाएंगे। बट लेट्स कीप सेपरेट, because we are going to enter the data in this table from some other places also. What other places? जैसे like in a society, I will put the expenses also. See, this is what, this is income, you guys are going to post the request, right? But expenses जैसे गार्ड की सैलरी है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, डीजल है, राइट, मेंटेनेंस है, लिफ्ट का मेंटेनेंस है, डीजी सेट का मेंटेनेंस है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें हमारा काफी सारा पैसा लगता है, राइट। So I will keep this as it is maintained. So that is the reason this is just a request for income, like whatever we are getting, and this is my final table. Okay, perfect. So now let's not waste more time. तो अभी अप्रूवल वाली में भी तो अभी क्या क्या बचा हुआ है हमारा, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है, राइट। Whatever we discussed today, right, that in approve, like when we are creating a society, a record should be entered into this table, okay. Society id, user id, unit number, area, and role, by default admin, right. So let's do that. Okay, there are two ways to do it. Okay, very good, बहुत बढ़िया चीज आई समझ में, right, कि there are two ways. One way, see, अगर आप देखो ये जो टेबल है, right, when I am creating a society, I have all information at that time. All information in the sense, uh, like society ID, right? Society name, units, right? Okay. And when I'm creating, okay, then, and this table has society ID, user ID. So user ID, you can get it whosoever is logged in and whosoever is creating that society. But these two number, unit number, and this is by default admin, and but these two numbers, these two things, right, are coming from this. See, the guy who is creating the society, he should not again raise a request, right? I mean, this is kind of an overwork. If a guy who is creating, though there are chances, there is a business case as well कि भाई हमने किसी से चलते फिरते से
या हो हम क्रिएट करवा लिया अपने लिए सोसाइटी, बट ऐसा कोई करवाएगा नहीं ना। एनीवे मतलब द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर मान लो देवेंद्र एक सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो फिर से उसको अप्रूव करने की रिक्वेस्ट डालें, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट देवेंद्र विल बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल and he can set this unit number and the area later, no problem, right? Perfect. So what I'm trying to say here is कि अब देखो दो चीजें आती हैं जब हम इस टेबल के अंदर डेटा डाल रहे हैं, राइट, व्हेन यू आर इंसर्टिंग डेटा इनटू दिस टेबल, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट, so once data is successfully saved in this, at that time at that time you can create one insert statement and send that insert statement into this table. Keep unit number and area blank, no problem, right? Once that is done, or there is another way also, right? What is that another way? In database you have read this DML statement, insert delete update, right? And as I was telling you is like, what is PL SQL? What is PL SQL? See, PL SQL is procedural language. Procedural language. Now, what is this procedural language? See, right now what you are doing is you are writing your code in Power Builder, right? In Power Builder, what you are doing? You are writing Power script, right? You are opening an event like, right click and opening, going to that event, and in that event you are writing your code. That is called Power script, right? In that Power script, what you can do is you can use if then else conditions, you can use loops, right? You can use variables. So and that is also called procedural, right? Means you can create variables, you can use loops, you can use functions, you can use so many things, conditions, right? So PL SQL means procedural, that you can create a procedure, you can create a function in database. Now what is the need? Why do we need that? See, sometimes you want to complete a transaction. Now what is a transaction? A transaction is a complete work. Let's say ब्रजू ने 10,000 रुपए दिए देवेंद्र को, राइट, फ्रॉम हिज ओन अकाउंट। सो अब ब्रजू का अकाउंट है आईसीआईसीआई में और देवेंद्र का अकाउंट है एसबीआई में। इनका आईसीआईसीआई में, आपका एसबीआई में है, दोनों के सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग है, राइट। तो क्या होना चाहिए, लेकिन जब देवेंद्र के अकाउंट से माइनस होएगा पैसा, सॉरी, बिरजू के अकाउंट से और देवेंद्र के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, तो दो सीक्वल लिखी जाएंगी, राइट। और अगर दोनों सीक्वल अपडेट नहीं होती हैं तो क्या होगा, तो दैट इज एन इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन, राइट। तो बेसिकली प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ वर्क करते हैं बहुत, उसके अंदर यू कैन राइट मोर देन वन सीक्वल, यू कैन create variables, you can use loops. So that is the reason it is called PL SQL. That's all. Otherwise काम सारा उसी में होता है, सारी सीक्वल्स ही लिखी जाती है। एनीवे, सो जैसे प्रोसीजर होता है, फंक्शन होता है, वैसे ही एक चीज होती है ट्रिगर। क्या होता है? ट्रिगर। What you can do is in database you can write a trigger. What that trigger does कि जैसे ही कोई ऑपरेशन होएगा, इंसर्ट, डिलीट या अपडेट, that trigger will be executed. So on that trigger event we can write that okay, once an insertion is done in this table, send, create a record in this particular table. So with the help of database you are not writing any code in Power Builder. Whenever there is an insertion in this table, whenever there is an insertion in this table, you can write a trigger, you can create a record in this table as well.
वो जब बताएंगे, बाद में बताएंगे व्हेन वी विल डू पीएल सीक्वल पार्ट, ठीक है। बट अभी के लिए व्हाट यू कैन डू इज you can just enter a record in this table. You can just enter a record in this table, right? So you will be admin of that particular society. Now once you are admin of that society, let's say Devender comes and he joins your society, and this society was created by Birju, right? Then Devender will create a request, then this request will go to Devendra, or the person whosoever is admin of that society, and he will able to approve it. Not like that okay this request is available to Devender ने पहले request create किया फिर approve भी अपने आप कर लिया, तो उसका benefit क्या हुआ, right? Perfect. So what I'm trying to tell you guys here is that this screen, okay, this approval screen, like it should be filtered based on the if you are an admin, then only you can see records in this screen, right? Okay, perfect. So let's do one thing. Yes, हम उस डेटा को फिल्टर कर देंगे, राइट? और या फिर हम क्या करेंगे कि अगर आप उस सोसाइटी का पार्ट मतलब एडमिन नहीं हो तो वो हम आप इस विंडो को ओपन करने से पहले ही वहां पे दिखा देंगे दैट यू आर नॉट एन ऑथोराइज्ड यूजर ऑफ दिस विंडो, but let it be there because again as I said that you can be admin of other society, right? परफेक्ट। तो अब इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर when I'm creating a society, create a society, right? How I'm creating society, I'm going here and then I'm writing the information here, and then so when I'm saving this particular society, one record should go there in that table, right, which we just discussed. Okay, so what was the table name? W underscore approve request login. Where is the create one? Actually, go here. Create society, right? Insert into, yes, वही लगाने वाला है। Create, oops, right? So when we are saving this information, right? So let's pick up the values. Society ID, SOC underscore ID, SOC underscore ID. So let me write in small. How we can pick up the value? We know get item number. Okay. One SOC underscore ID, TW underscore one dot. This is a numerical field, right? So li
integer, 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 li underscore soc underscore id, control c, control v, yes. Okay, and then similarly what we need, society id and the user id we have already, and role will be by default admin. So let's pick up these columns. Do I have notepad plus plus? No. Okay. Achha, we are not going to insert this unit number or area. SOAP ID. This is called embedded SQL, right? Embedded SQL, that you are writing direct SQL. SOAP ID, user ID क्या था तुम्हारा? GS underscore user underscore ID. Okay, and then what else you have? Role. Role is by default, let's say admin. SQLCA dot SQLCOD is not equal to 0 if, or if is equal to 0 then, and if else, message box INFORMA information is not saved. Okay, control S. Okay, मैंने क्या किया यहाँ पे कि अगर सक्सेसफुली हो गया तो मैसेज दिखाने की जरूरत नहीं है, बट इन केस देर इज एन प्रॉब्लम, सी जब आप एम्बेडेड सीक्वल लिखते हो, राइट, व्हेन यू आर राइटिंग दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट सीक्वल, तो whether this SQL was successfully executed or not executed, you can check with SQLCA dot SQL code. SQL code, like the this SQL code can have 0, minus 0, 100 and minus 1. When it is 0, then it means this this statement is successfully executed. If there is some error like minus 1 or 100, then we are displaying this message box. Okay, but I think we have not created this table yet. Let me create this table, otherwise let me create this table, new table, right? What are all the columns we have in this?
soak user ID, right? Society ID, numeric, and then what we have, user ID, varchar 100. Let's keep null. किससे? हाँ यार, इसमें डायरेक्ट टेबल बनाना है ये। चलो कोई नहीं, ये दो कॉलम और रह गए हैं। अच्छा, ये सोसाइटी आईडी है। हाँ अच्छा, हम हर जगह सोक आईडी रख रहे हैं शायद, नहीं सोसाइटी आईडी है। अब देखो, इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है व्हेन यू आर डिजाइनिंग द डेटाबेस, राइट? सोसाइटी आईडी, यहाँ भी सोसाइटी आईडी है, लेकिन हमने शायद कहीं पे सोक आईडी रख दिया है, विच इज नॉट राइट। क्योंकि जैसे जैसे ग्रो करता है हमारा डेटाबेस, वैसे वैसे फिर प्रॉब्लम होने लगती है। अच्छा, सोसाइटी आईडी, यूजर आईडी, सोसाइटी आईडी, यूजर आईडी, यूनिट नंबर, एरिया रोल, यूनिट नंबर, एरिया, न्यूमेरिक, आरओएल रोल, ये भी न्यूमेरिक। अच्छा, नलेबल, नलेबल, यूजर आईडी नल नहीं हो सकता, सोसाइटी आईडी मिल जाएगा अपने को, एडमिन भी नल नहीं हो सकता। वर्कर 10 ही रख लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द टेबल नेम? सोक यूजर टी, सेव इट। ओके, sock underscore user underscore t. Okay, perfect. Now what will be the primary key? कौन बताएगा? In this table, what should be the primary key? Correct. Perfect. So what should be the user key in this table? Primary key. If I will keep society ID, right, then only one record can be entered into this table, right? But a society can have more than one user, right? A society can have more than one resident, like, that is why you are creating a society. So this is basically how many people are associated to a particular society. जल्दी जल्दी बताओ, what should be the primary key in this table? एक आईडी से एक ही आदमी, एक ही बंदा लॉगिन करेगा, बट एक यूजर की अगर अलग अलग सोसाइटी या एक ही सोसाइटी में दो फ्लैट हैं, फिर एक बार को हम यूनिट नंबर रख सकते हैं, ठीक है, बट वो भी नहीं रख सकते। द रीजन इज, लेट से दो सोसाइटी है ना, उसमें यूनिट नंबर तो सेम हो सकता है ना, दो सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट का यूनिट नंबर इज 103 104, राइट, या 105।
परफेक्ट, या तो हम एक रनिंग नंबर बना सकते हैं, बिल्कुल सही। एंड व्हाट एल्स वी कैन डू? सिंपल यार, सी, a primary key can be, can be created on two columns, right? So let's keep society ID and the user ID, right? So let's keep this society ID and the user ID. कोई डाउट है किसी को? देखो, आप जो प्राइमरी की है, इट कैन बी क्रिएटेड ऑन मोर देन वन कॉलम एंड दैट प्राइमरी की इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की, राइट? दो कॉलम, सी, एक यूजर कैन बी इन टू डिफरेंट सोसाइटीज। देखो, यूजर आईडी तो यूजर आईडी और सोसाइटी आईडी का कॉम्बिनेशन शुड बी यूनिक, कॉम्बिनेशन शुड बी यूनिक। भाई, एक यूजर को एक ही सोसाइटी में हालांकि दो बार भी आ सकता है। कैसे? अगर एक ही सोसाइटी में उसके दो फ्लैट हुए तो, लेकिन वो, अगर उसके दो फ्लैट हुए तो तब उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, इजंट इट? लेकिन ऐसे केस, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? उस केस में उसको क्या, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? उस केस में हमें ये भी ले लेना चाहिए। हाँ, अब तीन का मिलाकर क्या हो गया? हाँ, दिस इज कॉल्ड अ कंपोजिट प्राइमरी की। तो देखो, अभी तक हम सोच रहे थे दो से काम चल जाएगा कि वन यूजर कैन बी एसोसिएटेड to more than one society, but a user can have more than one unit in a society। एक से ज्यादा फ्लैट ले लेते हैं ना कभी कभी लोग, हालांकि बहुत रेयर केसेस होते हैं, एक ही फ्लैट में आदमी की वोट लग जाती है, लेकिन देर आर पीपल कि भैया वो नो, जिनके पास पैसा है, दे कैन हैव टू फ्लैट्स, थ्री फ्लैट्स, फोर फ्लैट्स, वॉट एवर, राइट? ये सपोज एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर अभी किसी ने 50 फ्लैट बनाए, बिल्डर ने, 50 में से 40 ही बिके हैं, तो 10 फ्लैट का ओनर तो अभी वही है, बिल्डर ही है, isn't it? एनीवे, बट इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी डुप्लीकेट, राइट? बट एक चीज है, अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज कि अगर एक घर से, एक यूनिट से, अच्छा, उसको उस टाइम पे उसका यूजर आईडी चेंज हो जाएगा। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि वन यूजर, आई मीन एक फैमिली के इस एप्लीकेशन को और भी लोग देखना चाहते हैं, सपोज, राइट? दे ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर। तो या कल की डेट में आज एक यूजर था, कोई दूसरा यूजर आ गया और वो लॉग इन कर रहा है, राइट? इन दैट केस, तो उसका यूजर आईडी डिफरेंट हो जाएगा, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। या जैसे लेट से एक फैमिली में चार लोग रहते हैं, चारों इस सोसाइटी का मेंबरों का पार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन सबका चारों का यूजर आईडी फिर डिफरेंट हो जाएगा, isn't it? तो लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कैन वर्क इजीली, ठीक है? बट हमें क्या करना चाहिए? वी शुड हैव रनिंग आईडी, रादर जब कभी ज्यादा होने लग जाए, तो उस केस में अपने को एक रनिंग आईडी रख लेना चाहिए। बट एनीवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स कीप ऑन दीज ओनली। नहीं, नोट नल कर रखा है मैंने, बट ये, हाँ, यूनिट नंबर का ले रखा है। हाँ, नहीं, नल देखो, अगर मोर देन वन है ना तो उसमें ले सकते हैं। लेट मी सेव इट, ये अलाउ करेगा क्या? नहीं आ रहा है, परफेक्ट, राइट?
तो एक काम करते हैं, इन सबको छोड़ते हैं, इसमें एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, दैट इज रो आईडी। और फिर जाओ, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। ओहो, अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये नल ही हो रहा है क्या? अरे यार, ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें यार, ये ना हम्म, उसके बाद में है ना, हाँ, ये लोकल डीबी पीरियड। So what should we do now? यहाँ से ना, अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम क्रिएट ना करें, ऐसा कह रहे हो? अच्छा, तो इसको ऐसा करके कर दिया मैंने, और सेव इट, है ना, और लेट्स गो देयर, एसओ सी यूजर आईडी, सो सी यूजर आईडी, ऑल्टर टेबल, ALTR ऑल्टर टेबल, ऐड, ऐड हमने क्या करना था, रो आईडी विच इज न्यूमेरिक होता, नंबर होता है। अच्छा, 10 0, नोट नल, राइट, oops, not save, basically execute, control L, not found, oops, sorry, continue, yes, it is T, control L, अभी शायद क्रिएट हो गया है, लेट मी रिफ्रेश इट, न्यू प्राइमरी की, दिखाया नहीं इसमें, मतलब क्रिएट नहीं हुआ क्या? बट इसने एरर भी थ्रो नहीं किया ना। कोई बात नहीं, इसको ना मैं पहले बंद कर देता हूँ, एडिट डेटा अगर हम करें, नहीं, नॉट एडिट, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो गया यार, ये रिफ्रेश नहीं हुआ है अभी, ये एक सेकंड रुको, सो करता हूँ मैं, टेबल रिफ्रेश, एंड देन soak user t, soak user t, alter टेबल, हाँ आ गया ना, नो करके, और प्राइमरी की, सेव इट, हो गया। नाउ, अब हमें लेकिन एक रनिंग नंबर देना पड़ेगा इसको, और
हम एक चीज और भी कर सकते थे. व्हाट इज दैट? लेट्स गो बैक. हाँ, आइडेंटिटी कॉलम बना देते हैं इसको. परफेक्ट. लेट्स alter this. Go here. Make it auto increment. चलता है ना इसमें शायद. Cannot alter a column in an index. वही. एनीवे कोई बात नहीं, अभी उसको ऐसे ही बना रहने देते हैं. We can add that. But how we will do it? We will say a select count or max row ID from Control C, Control V, into li underscore max underscore ID, and then if this is null or this equal to 0, then कभी कभी वो लेता नहीं है, तो इसलिए इज नल को ऐसे न करके ऐसे करते हैं. इज इक्वल टू 0. ओके. एंड अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया इसको. syntax error. Where is the syntax error? Oh, perfect. ठीक है. अब कहाँ पे है syntax error? Very good. I like it. Okay. और फिर हम क्या करेंगे? Control X इतने इक्वल टू दिस प्लस 1, जो भी वैल्यू आया. और फिर हम क्या करेंगे? रो अंडरस्कोर ID और li अंडरस्कोर max max अंडरस्कोर ID. ठीक है. परफेक्ट. अब करके देखते हैं. एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं विनेश के नाम से. सोसाइटी क्रिएट. और पेमेंट का बाद में देखेंगे. लेट्स क्रिएट अ सोसाइटी. सोसाइटी आईडी डालते हैं 106. सोसाइटी नेम इज INDRA इंदिरा. इंदिरा. यूनिट्स इसमें लेट्स से 10 यूनिट्स हैं. सेव. ओके. ओके. so I can check only there in that table. अच्छा. error. ओहो. थिंक कमेंट ही रहने दिया. कोड दो भाई. कंट्रोल एस. विनेश के नाम से क्रिएट ए सोसाइटी. 107 ब्रह्म. कुछ भी रख लेते हैं. बजरा. सेव इट. ओके. लेट्स सी our table.
Where is that? Soak user T. Perfect, right? And then admin, right? Good. So now Vinesh should be able to, now let's say uh, Rohit, you know, Rohit or someone else. Let's run it. I am typing ROHIT Rohit, right? Login and then approve request. Not approve, sorry. Rohit will request, right? To join this Vajra. His unit is, let's say, 109 and his square area is 1000, right? And join, right? So now he'll go here and approve it. 109, right? Unit number Rohit का should be approved. Now Rohit can approve it, but नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. It should not be displayed to Rohit. Okay, it should be displayed only to Vinesh because he created it, right? So what we can do is the interesting code जो मैं आपको बताना चाह रहा था. Let's go to that approval wala window. Where is that? Approval request, right? So what we will do is, right? So where is my SQL? This is my SQL, right? So if I am an admin of that society, if I am an admin of that society, जिस सोसाइटी का भी ये रिकॉर्ड आया है, right? Then only I should be able to see those records. So let's just go back to this convert syntax where exist select one from, what is the table name where we have this admin detail? Soak user T. Control C. Soak user underscore T. Okay, this is B table where B dot role equal to admin admin. Okay, and user underscore id equal to as user id and नहीं नहीं I'll tell you. आप सही कह रहे हो. हाँ, मैं अभी बताता हूँ आपको. एंड सोसाइटी आईडी, एक काम और भी करते हैं, इसको हटा देते हैं. कंट्रोल एच, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एच, कंट्रोल वी, रिप्लेस ऑल, कंट्रोल एच, रिप्लेस ऑल. ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी इसलिए हटा दिया इसको. इसको ए नाम दिया और इसको बी नाम दिया. इट इज नॉट केस सेंसिटिव बट ठीक है, ऐसा कर लेते हैं. बी डॉट एंड ए डॉट सोसाइटी आईडी
society underscore id control s, चलो जो भी है. This is like retrieval argument. User id is worker. Where is worker? कहाँ है worker? स्ट्रिंग होता है. हाँ हाँ स्ट्रिंग. और तो देखो अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा. वी विल डिस्कस. वन सेकेंड, सेव इट. एंड जब हम इसमें पास कर रहे हैं रिट्रीव करने के टाइम पे देन gs अंडरस्कोर यूजर आईडी. ओके नाउ लेट्स रन इट विद विनेश आईडी. अरे यार ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक ही रिक्वेस्ट डाली है तो विनेश के नाम की मतलब विनेश अभी एक ही सोसाइटी के अंदर एडमिन है, करेक्ट. तो इसलिए उसको ये वाली सोसाइटी दिख रही है 107, क्योंकि अभी हमने क्रिएट की थी ना रोहित से पहले, राइट. और लेट्स लॉग इन विद सम अदर आईडी. लेट्स लॉग इन विद रोहित. कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा उसको क्योंकि वो किसी का एडमिन ही नहीं है, राइट. तो अच्छा, आज आपने एक नई चीज सीखी. एंड व्हाट इज दैट न्यू थिंग? Okay, let's go back to this one. See, if this is called a retrieval argument. This is called a retrieval argument. Retrieval arguments are used to filter your data. So basically what you are doing is before executing that SQL, you are passing some values, okay, to this data window data window object. And what is the SQL of this data window object? Let's look at it. So this is the SQL. It has one retrieval argument, this one, as user ID. Okay, तो जैसे आप बिरजू कह रहे थे ना कि हमारा GS यूजर आईडी है. देखो आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, आप समझ रहे हो, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, राइट. बिरजू भी लिख दोगे तब भी चलेगा, राइट. क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं. ओके, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. कि ये सीक्वल अलग काम कर रही है. देखो अगर आप देखो तो ये जो ऑब्जेक्ट है डेटा विंडो ऑब्जेक्ट, राइट, ये बिल्कुल अलग है. और ये जो आपका कोड है ये विंडोज का ओपन इवेंट है. ये विंडोज का ओपन इवेंट है, राइट. बट ये क्या होता है, रन टाइम पे कनेक्ट करता है कि भैया DW1 का जब रिट्रीव करने जा रहे हो इसको ये पास कर दो, चाहे यूज हुआ हो या ना हुआ हो, बस पास कर दो. तो फिर मैपिंग कैसे होती है? कैन वी हैव मोर देन वन रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट? यस, वी कैन हैव मोर देन वन रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट. इसकी जो मैपिंग है वो पोजिशनल मैपिंग होती है. क्या होती है? पोजिशनल मैपिंग, राइट. मतलब ये डिजाइन टाइम पे आपको कोई एरर नहीं देगा. आप इसके अंदर कोमा डाल के कुछ और भी डाल दोगे ना पैरामीटर, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज आपने क्या किया है, 4 रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट लिए हुए हैं अपनी डेटा विंडो के अंदर. यू हैव टेकन 4 रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट हियर, राइट. इन द सीक्वल यू हैव टेकन 4 रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट. एक एज यूजर आईडी 1 है, एक एज रिट्रीव है, या कंट्री है, स्टेट है, व्हाटएवर. बट in retrieval argument, but when you are calling this retrieve function, you are passing only 1. Then what will happen? You are passing 2, what will happen? You are passing 3, what will happen? You are passing 4, what will happen? अरे 4 है तो ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 to 1 मैपिंग है. What if you will pass 5, what will happen? तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी करके इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा आपसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट एंड हाउ डज इट बिहेव. तो मैं आपको बता देता हूं व्हाट इट डज. बेसिकली लेट्स से इफ यू आर नॉट पासिंग एनीथिंग, लेट्स कीप इट सेपरेट.
राइट। व्हाट हैपेंड, उसने कहा भैया मैं एग्जीक्यूट क्या करूं, मुझे उस रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चाहिए। तो व्हाट इट डज बेसिकली, इट आस्क, hey give me the the value of that retrieval argument, right? ओके, सो अगर मान लो यहाँ पे ऐसे था, आपने एक और पास कर दिया, जबकि वहां तो एक ही था, राइट? तो क्या होगा, लेट्स चेक दैट। कुछ नहीं होगा, दूसरी वैल्यू को इग्नोर कर देगा। पोजिशनल मैपिंग है, वन टू वन मैपिंग है, पहले वाले की पहले वाले से, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तीसरे वाले की तीसरे वाले से, चौथे वाले की चौथे वाले से। तो अगर आप ज्यादा पास कर रहे हो तो पुराने वाले को इग्नोर कर देगा, वो कहेगा जाने दे। मान लो अगर 3 आर्ग्यूमेंट होते और आप एक ही आर्ग्यूमेंट पास करते, तो वो आपको 2 आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पूछता कि एक की तो मिल गई, 2 और दे दो मेरे को, ठीक है? तो ऐसा करके ये हमारा काम चलता है। नाउ विनेश कैन अप्रूव इट बट नॉट रोहित हिमसेल्फ, बिकॉज विनेश इज यू नो तो ये सीक्वल आप देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिन लोगों को डेटाबेस आता है, राइट? इसका मतलब ये है कि हमने जैसे डिस्कस किया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, so what it will do, it will give all the records, but if there is a where clause, it will check it, if this condition is true, then only that record will be displayed or selected, otherwise will not। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि hey pass this society id in this table, right, and my id, if my id, my society, like I have admin role, then exist, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो रिकॉर्ड दे दो, अदरवाइज फेल हो गई तो उसको हटा दो, सिंपल। ये आ गया आपका, हाँ, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा ये स्क्रीन बन गया, अप्रूवल वाला फिट हो गया, राइट? इस टेबल के अंदर डेटा जाना शुरू हो गया, राइट? बट अभी एक चीज है उसमें, क्या है कि जब रोहित के अकाउंट्स में अप्रूव कर रहा हूं, राइट, तो क्या होना चाहिए, रोहित का डिटेल शुड ऑल्सो एंटर इनटू दिस टेबल on the approval, right? Why? Because this is my main table, and then like if I have a record in it, then I can go and create a payment request, right? I can go and create a payment request in for the security id in which, sorry, so not security, society id to which I am allocated, right? The society which is associated to me, I should be able to do the payment. And when I'm doing the payment, that request should go into this table, payment request tables will be saved, right? Then we will create one more screen based on this table, right? That payment request, abhi to approval request tha, payment approval request. Then again we will write like the same as we are approving here, that okay, I'm able to approve, and once this request is approved, that record should be created in your account table, right? तो ये हमें करना है अभी। तो 9:30 हो गया, right? So I'm stopping this class here, but I'll share this code and the recording again with you guys, so please complete at least till this point, ठीक है? और यह क्रिएट करवाने की कोशिश करो। कल फिर हम 10 बजे, या मैं बता दूंगा टाइम, we'll have a class and I'll introduce two more gentlemen. They are already working somewhere like senior people. If I'm not available, they will try to get all these things done. But हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ठीक है?
Chalo, all right, guys. Thank you. Thank you.